Jai Hind to all. Myself Dr. Nilesh Kumar Gupta. I am working as a professor at Ajay Kumar Garg Engineering College in Department of ECE. Today I will deliver a lecture for a subject of information theory and coding. Its AKTU code is KEC 075. And now today's my lecture title is Shannon-Fano coding. It's very important and simple coding. Under the source coding, this method is generally used. So, I will tell you in this lecture about the Shannon-Fano coding. What is Shannon-Fano coding? What are the steps for performing the Shannon-Fano coding for given messages and their probabilities? How we calculate the expected length or average code word length in Shannon-Fano coding. Okay. And what are the advantages, disadvantages and ambiguities, okay, or some limitation you can say in Shannon-Fano coding, that I will tell you in this lecture. So, let us recall, in last lecture I told you about the optimal code. What is the meaning of optimal code? Optimal code क्या होता है? What we want to do in optimal code, that I told you in last lecture, that we have to minimize the our code word length. Okay. कोडिंग इस तरह से करेंगे कोड वर्ड लेंथ भी कम हो और उस तरह का ऑप्टिमल सोर्स कोड डिजाइन हो अंडर द सम सफिशिएंट कंडीशन दैट इज क्राफ्ट इनइक्वलिटी. Okay, that we have to keep here. Today's lecture is based upon the only and only Shannon-Fano coding. So, Shannon-Fano coding, okay. तो Shannon साहब की कोडिंग है ये. तो at first we will see some example based upon the Shannon-Fano coding. Then we will see about its advantages and limitations. Then some ambiguity in Shannon-Fano coding कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें दिक्कत थोड़ी सी हमें आती है और देर आर multiple number of ways for applying this Shannon-Fano coding. So, some conditions are there, then we will get the different code word lengths and their efficiency, okay, that I will tell you. Next, Huffman coding. Okay. After that, the very important, most widely used coding, that is Huffman coding. But today I will discuss about the Shannon-Fano coding. Shannon-Fano coding, a variable word length minimum redundant code is described. तो Shannon-Fano कोडिंग में क्या है? वेरिएबल वर्ड लेंथ, ओके, कोड वर्ड लेंथ चेंज होगी, मिनिमम रिडंडेंट कोड इज डिस्क्राइब. It has the advantages of both the Huffman and Shannon-Fano code. So, generally whenever we perform the source coding for number of messages or sources, then we use the two types of generic coding, Huffman and Shannon-Fano. So, इनमें क्या होता है? Reduces the transmission time, storage space, ट्रांसलेशन टेबल स्पेस एंड एनकोडिंग एंड डिकोडिंग टाइम्स. तो ये इनके एक तरह के हाइलाइट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन कोडिंग्स, ओके, जो हम देखेंगे जनरली जब मैं बताऊंगा. नाउ स्टेप्स. Shannon-Fano कोडिंग में कौन कौन सी स्टेप का हम यूज़ करें? स्टेप्स का ध्यान रखें. इफ़ यू हैव टू परफॉर्म, यू वांट टू परफॉर्म Shannon-Fano कोडिंग, सो दीज स्टेप्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ओके. तो स्टेप नंबर 1, टू अरेंज ऑल द मैसेजेस, जितने भी सोर्स या मैसेजेस आपको दिए हुए हैं, दैट यू हैव टू अरेंज ऑल द मैसेजेस इन ऑर्डर ऑफ नॉन इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटीज. इट मीन्स स्मॉलर टू लार्जर. You have to arrange, you have to keep your all the messages in terms of their probability, non increasing probability order. Second step, एक बार जमा लिया, now you have to partition. आपको उसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में into two equal approximately probable subsets. आपने जमा लिया, अरेंज कर लिया नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में. आफ्टर दैट यू हैव टू split or partition into two equal probable messages like x1 and x2.
दो सबसेट बन गए, एक x1 बन गया, एक x2 बन गया, इनटू इक्वल पावर। अब इनको कोडिंग असाइन करनी है, तो इन दो सबसेट्स में कुछ भी ले लो, ऊपर 0 नीचे 1 या ऊपर 1 नीचे 0, आपने कोड वर्ड डिजाइन असाइन कर दी। नाउ दिस प्रोसीजर कंटिन्यू अंटिल ईच सबसेट, जितने भी सबसेट आगे आप बनाओगे कंटेन्स ओनली वन मैसेज। जब तक वो सबसेट में वन मैसेज नहीं बनता तब तक इस प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। सो इनटू टू इक्वल प्रोबेबल मैसेज, ओके, सो दैट यू हैव टू, तो दीज आर द स्टेप्स। सबसे पहले हमको करना है क्या, जितने भी मैसेजेस दिए हैं उन मैसेजेस को उनकी प्रोबेबिलिटी के नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लेना है। सेकंड क्या करना है, उन मैसेजेस को हमें स्प्लिट करना है या पार्टीशन करना है, ओके, उसके पार्ट्स करने हैं इनटू टू इक्वल, अप्रॉक्सीमेटली टू इक्वल, कभी इक्वल प्रोबेबल सेट बनेंगे कभी नहीं भी बनेंगे, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग व्हाट, टू इक्वल अप्रॉक्सीमेटली प्रोबेबल सबसेट्स लाइक x1 एंड x2। इस तरह से डिवाइड कर लेना है x1 x2। Now you have to assign some code, okay, in one subset you have to assign 0, in other subset you have to assign 1. Similarly this coding you have to assign, okay, to sources or messages until each subset contains the only one message, okay, that you have to keep in mind. Now we will see some example here. So for example number 1, what, apply Shannon coding आपको इसमें अप्लाई करनी है, okay, और ये आपको मैसेजेस और प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। और m इजिकल, इसका मतलब क्या है, m इजिकल 2 मतलब दो सिंबल यूज करने हैं। m इजिकल 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 का मतलब क्या हुआ, 0 एंड 1, कोई भी दो यूज कर लो, जबरदस्ती नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट द बाइनरी देन वी कैन टेक 0 1। इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बाइनरी देन यू कैन से -1 0 और 1 2 3, कुछ 1 2 कुछ भी, मतलब कोई भी दो सिंबल आपको लेने हैं। m इक्वल 2 का मतलब ये है, ओके, इस तरह से आपको करना है। और आपको कोडिंग करने के बाद कुछ आपका l आएगा, कुछ hx, अब आपको प्रोबेबिलिटी दी है तो आपको hx भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ एंट्रोपी तो आएगी इसकी, l आप निकाल लोगे कोडिंग करने के बाद। और उसके बाद आता है फॉर्मूला एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी इनके थ्रू एफिशिएंसी निकालनी होती है, उसका फॉर्मूला भी आता है। तो उसको हम क्या लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है hx अपॉन l लॉग बेस ऑफ 2m। इस फॉर्मूले से हम एफिशिएंसी किसी भी कोडिंग मेथड के निकाल सकते हैं, लाइक शेनन फेनमैन हफमैन कोडिंग। एफिशिएंसी इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ द सोर्स hx अपॉन कोड वर्ड लेंथ, ओके, एवरेज कोड वर्ड लेंथ इनटू लॉग बेस ऑफ 2m। m क्या है, नंबर ऑफ सिंबल, सो हेयर m इज इक्वल टू 2। इफ हेयर m इक्वल टू, सो लॉग 2 की बेस 2 इज इक्वल टू 1, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। ओनली व्हाट, इन दिस केस आवर फॉर्मूला विल बी एफिशिएंसी इज इक्वल टू hx अपॉन l। अब अपन देखें इनको जमाने वाला काम, ठीक है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी दी है, 8 मैसेजेस दिए हैं एंड दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ। तो पहली स्टेप क्या थी मेरी, कि इन प्रोबेबिलिटीज को असेंड, कौन से ऑर्डर में जमाना है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, मतलब बड़े से छोटा और नॉन इंक्रीजिंग। सबसे पहले सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है इसमें, देखो अपन देखें 0.25 सबसे बड़ी है, 2 लिख लें अपन आगे। सबसे बड़ी कौन सी है, 0.25, ठीक। उसके बाद देखें अपन प्रोबेबिलिटीज 0.125 और क्या है 0.125, यही आ रही है, देखो अगली आ गई 0.125, 0.125। और देखें 8 हैं, 4 हुई हैं, अभी चारों बची, मतलब चारों कौन, 0.0625, 0.0625, मतलब यह बराबर है 4, उसके अलावा कुछ तो है नहीं। तो 0.0625, 0.0625, 0.0625, 0.0625, इज इट ओके, ओके।
आई होप इट इज़ ओके टू एवरीबडी। सो पहला काम मैंने क्या करा, जितने भी मैसेजेस की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लिया फर्स्ट में। अब क्या करेंगे हम लोग अब हमें पार्टीशन करना है, m इजिकल टू 2 है तो दो इक्वल सबसेट्स में, ओके, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल प्रोबेबिलिटी हो। अब देखें अपन इसमें 0.25 को जोड़े तो 0.5 आता है और इन सब को जोड़े तो 0.5 बराबर आ रहा है, मतलब यहाँ से यदि कट करते हैं पार्टीशन करते हैं बराबर आएगा 0.5। अब मैंने उसके बाद क्या बताया था, असाइन अ कोड, एक सबसेट को 0 दो, एक को 1 दो, तो ऊपर वाले को दोनों को हमने क्या दे दिया 0 0 और नीचे वालों को क्या दे दिया 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। हो गया। अब ये 0.25 है, आपस में दोनों बराबर हैं, इनका भी सबसेट बन जाएगा, ऊपर 0 नीचे 1। अब देखें 0.125 ये कितना होगा 0.25 और इन सबको जोड़ें चारों को तो दिस 0.25, तो दो बराबर सबसेट होगा, तो ऊपर 0 0 नीचे, अब ये आपस में ही बराबर हैं तो 0 1। कब तक करना है साइन, जब तक कि सिंगल मैसेज में, तो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, सिंगल मैसेज आ करना है, यहाँ कुछ नहीं करना हमें। अब यहाँ देखें दिस 4 आर इक्वल, सो यू हैव टू कट हेयर 0 0 1 1, नाउ इट विल बी 0 1 एंड दिस विल बी 0 1। ठीक, अब इनकी लेंथ देख लें हम लोग, एल आई कितना आ रहा है, कितनी लेंथ आ रही है, पहले वाले की लेंथ कितनी है, कोड कितना कोड वाला 1 2 1 2 2, अगले वाले की 2, फिर 3 3 4 4 4 यही आ रही है हमारी। ठीक, एल आई आ गई। तो इस तरह से हम शेयर फेनो कोडिंग में हमारे गिवन मैसेजेस को कोडिंग प्रोवाइड कर सकते। इट्स वेरी वेरी सिंपल। एट फर्स्ट यू हैव टू अरेंज इट्स नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी, then you have to try to partition these into the approximately 2 equiprobable sets, then assign a code in terms of 0 1 if m is equal to 2। यदि आप ऐसा करते हो एल बराबर कैसे निकालेंगे, समेशन कितने मैसेज थे हमारे i 1 to 8, क्या फॉर्मूला होता है हमारा pi इंटू एल आई। अब कुछ नहीं करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी, पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, देखो यहाँ से देख सकते हैं कितनी थी 0.25, एल कितना है 2, तो 0.25 इंटू 2 प्लस अगला क्या था 0.25 इंटू 2, अगला क्या था 0.125 इंटू कितना आया था, कितने कोड आए थे उसमें, कितनी लेंथ थी 3, अगले की भी 3, तो 0.125 इंटू 3 प्लस 0.125 इंटू 3 प्लस अगला क्या था 0.0625, सो 0.0625 सब में कितनी कितनी 4 4 4 4 4 4, सो इट विल बी 0.0625 इंटू कितना है 4 लेंथ है और कितने हैं ये 4 4 है ना, ये ऐसी 4 बार लिख लें इसको, 0.0625 इंटू 4 प्लस 0.0625 इंटू 4 प्लस 0.0625 इंटू 4, जो भी आएगा सॉल्व करने पे इट विल बी एल। सो एल कितना आएगा सॉल्व करेंगे 2.75 लेटर्स पर मैसेज, सो इट विल बी आवर व्हाट एवरेज कोड वर्ड लेंथ अंडर दिस कोडिंग फॉर दिस गिवन एग्जाम। एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ईटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा m बराबर 2 है, तो m इक्वल 2 है इसका hx अपॉन l, तो hx चाहिए और l चाहिए। एफिशिएंसी क्योंकि हमें कोई मेथड की रिलायबिलिटी कहाँ से पता चलती है, वी कैन चेक द रिलायबिलिटी ऑफ एनी मेथड फ्रॉम इट्स आउटपुट, फ्रॉम इट्स एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी hx अपॉन l, l तो निकालिए, hx हम निकाल सकते, फॉर्मूला क्या होता है समेशन i1 to 8 माइनस पी लॉग बेस ऑफ 2 पी। प्रोबेबिलिटी सबकी दी हुई है, हमें निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, ना यू विल गेट hx इज इक्वल टू 2.75। नाउ एफिशिएंसी इज इक्वल टू hx अपॉन
एल। एच एक्स कितना आया हमारा यहाँ पे 2.75, एल कितना आया 2.7, दोनों बराबर है। सो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी 100%। तो ये मेथड वेरी सिंपल है and it will give the 100% efficiency if all messages, if you will be able to partition okay into equiprobable subset। इसमें आपने देखा कि हर जगह आप equiprobable subsets डिवाइड करने में सफल हुए, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी 100% है। नहीं हो पाते 100% कभी नहीं आती। तो 100% जब भी आएगी जब बिल्कुल आइडियल कंडीशन लग जाए कि हमें ऐसे सबसेट मिल जाएं जो आपस में क्या हो इक्विप्रोबेबल, then it will give the 100% efficiency. So I hope it will be clear to everybody from this example. So we can see another example this again apply Shannon coding for m is equal to efficiency फिर से वही होगी क्या eta is equal to hx upon l log m। तो m कितना है 2, तो ये पूरा क्या हो गया 1, तो ये एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा hx अपॉन एल। एच एक्स निकालना एल, एच एक्स तो हम निकाल लेंगे सिंपल पी आई इंटू लॉग पी आई समेशन, बट हमें क्या निकालना है आगे इसमें एल। एल के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग में पहली स्टेप क्या होती है टू अरेंज ऑल द मैसेजेस एज पर देयर नॉन इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी। सेकेंड you have to partition those messages probability ओके पहले उसको जमा लिया आपने, फिर आपने पार्टीशन किया इनटू 2 इक्वल सबसेट्स ऑफ approximately equal probability sets, then assign a code and then count the length of code okay, or as per the length of the code you can determine the L here okay। तो यहाँ देखिए अपन ये आपको मैसेज 7 मैसेज दिए हैं, 7 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखें इसमें पहले अरेंज कर लें अपन कैसे होगा। 0.4 सबसे बड़ा है, देखिए अपन पीछे क्या है 0.4, हाँ फिर क्या है देखो 0.4 के बाद 0.2, फिर क्या है 0.12, फिर पॉइंट ऐसे देखते हैं अपन इसमें 0.2, फिर 0.12, फिर आगे क्या है देखो 0.12 के बाद 0.08, 3 बार है शायद 0.08, 0.08, 0.08 और 0.04। यू कैन चेक फ्रॉम हेयर। पहला काम क्या करा हमने नॉन इंक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी सेट्स में इसको जमा लिया, सभी प्रोबेबिलिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, कोशिश देखते हैं यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी सेट्स बन रहे हैं क्या। m इक्वल टू 2 है कि 2 प्रोबेबिलिटी सेट बनाने हैं, मतलब 2 ही m बराबर 2 का मतलब है 2 ही सिंबल यूज़ करने हैं। तो बाइनरी में बात करें इसलिए हम 0 1 यूज़ कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे यदि इसको यहाँ से पार्टीशन करें हम लोग दिस, तो क्या होगा देखें, दिस इज 0.4 प्लस 0.2 0.6 एंड 0.12 0.2, सो 8 0.4 0.6 0.4। अच्छा यहाँ से तोड़ेंगे तो ये 0.4 ये 0.4 मतलब बराबर तो आएगा ही नहीं। यदि बराबर नहीं आएगा तो हमें कोशिश करनी है कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाए ओके। तो यहाँ से पहले देखते हैं, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो स्प्लिट यहाँ से करें या स्प्लिट यहाँ से करें ठीक। तो पहले हम देखते हैं कहाँ से, यहाँ से स्प्लिट किया, यहाँ से स्प्लिट किया। अब कोड करना है तो ऊपर वाले सबसेट में 0 0, नीचे वाले में 1 1 1 1 1। अब ये दोनों आपस में कुछ भी नहीं कर सकते 0 1। अब देखें 0.12 0.1 0 8 0.20 एंड दिस इज 0.20 बराबर आ गए 0 0 1 1 1। अब ये आपस में 0 1। अब इसमें देखें 0.08 0.08 0.04 क्या होगा इसमें, देखें तो कहीं से भी काट दें एक ही बात है 0 1 1, इनको करेंगे तो 0 1। तो in this way you can assign a code and now you will get the length for each messages. So first it is 2, for second 2 3 3 3 4 4, ये आ गया आपका एल आ गया।
अब यदि आपका L आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो इससे, आपका L क्या होता है, समेशन I1 टू कहाँ तक, कितने मैसेज है, 7, क्या करें, Pi इंटू Li. If you solve this, you will get L is equal to 2.52 letters per message. Hx again minus what, Pi into log of Pi. कितने मैसेज है, I1 से कहाँ तक कितने मैसेज क्लिक कर रहे हैं हम लोग, 7. So if you solve this, then it will be 2.42 letters per log base of 2 है, ध्यान रखना हमेशा. Always you have to take base of log 2. If you solve this, efficiency is equal to what, you know, Hx upon L. If you put here what, it will get what, Hx कितना है, 2.42 upon 2.52. If you solve this, you will get its efficiency will be 96.03. तो कम हो गई, क्योंकि यहाँ जितना इक्वल प्रोबेबल सेट्स बनेंगे उतनी अधिक एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उतनी अधिक हमारी मेथड की रिलायबिलिटी बढ़ेगी. दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. नाउ अगेन व्हाट वी कैन सी, यदि हम क्या करें इसमें 0.4, 0.2 यही था, 0.12, 0.08, 0.08, 0.08, 0.04 यही था हमारा. ठीक, अब करें, यदि इसको यहाँ से तोड़े होते, यहाँ से पार्टीशन किया होता तो क्या होता, 0 ऊपर आता, बाकी जगह 1 1 1 1 1 1 ऐसे ही होता. ये खत्म. अब देखें यहाँ पे, दिस इज 0.32, दिस इज 0.28, यहाँ से तोड़ दें, 0 0 1 1 1 1, दिस इज 0 1. अब यहाँ देखें, ये दोनों को तोड़ें, 0 0 1 1, 0 1, दिस इज 0 1. अब देखिए कितना Li आ रहा है यहाँ पे, 1 3 3 4 4 4 4 ऐसे आ रहा है. ठीक, तो अब इन केस में अलग हो जाएगा हमारा, L बार हम निकालेंगे. सो इट विल बी समेशन Pi Li I1 to 7. If you solve this, so you will get, it will be 2.42 letters per message. Hx आपका वही रहेगा, क्या आएगा, 2 पॉइंट कितना आया था, वो तो सेम रहेगा, 2.42 आया था. ओके, if you solve this, okay, you will get L is equal to, okay, देखते हैं इसमें क्या, अभी आगे देखते हैं क्या आएगा. दिस इज Hx, you had 2.42 bits per message. Now you will get the efficiency. So in this example what you will get, L is equal to 2.48. So in this example you will get 2.48. So efficiency will be क्या होगा, 2.42 upon 2.48. So it will be 97.06 approximately, इतनी efficiency. So efficiency will be different. यहाँ efficiency आपकी अलग आई, 196 थी, यहाँ 97 आई. So this difference will come. So this is called ambiguity in Shannon-Fano coding. कि there are more number of ways, multiple number of ways you can encode your source. जब मल्टीपल वे आएंगे तो मल्टीपल आंसर, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल एफिशिएंसी, मल्टीपल आउटकम्स आएंगे. सो इन फर्स्ट you got 96.03%. In second case you got 97.06. So this is ambiguity in Shannon-Fano method. So this ambiguity arises due to the availability what, more than one equally valid scheme of partition resulting in. तो इस तरह की चीज़ इसमें आती है, इससे एफिशिएंसी पर फर्क पड़ता है. सो दिस केस विल हैपन, विल अराइज इन Shannon-Fano coding. ओके, सिमिलरली इफ यू टेक m इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू 3 लोगे तो अलग केस आ जाएगा. 3 का मतलब क्या, वो 3 सिंबल 0 1 2 कुछ भी 3 ले लो और सॉल्व कर दो. 3 लोगे सॉल्व करोगे तो आपकी L रिड्यूस हो जाएगी. इट इज यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 1.72 एंड एफिशिएंसी 88.7. मतलब एफिशिएंसी कितनी कम हो गई, वहाँ 96 और 97%, यहाँ पे केवल 88.7
7% हो गई. So, it will decrease here. Okay. These are some advantages. Okay. In next class I will tell you in detail, and these are the limitations of Shannon-Fano coding. Okay. And these are references that you can refer. So, in this lecture I told you about the Shannon-Fano coding. If you take m is equal to 2, if you take m is equal to 3. So, you will find some differences if you take m is equal to 2 and 3, and your efficiency, whenever your m increases, your efficiency will decrease. With increasing the m or number of symbols in coding, your efficiency will decrease. Okay. So, next I will tell you in my next lecture. Thank you very much.